So this is your next video, and today we will be discussing about one of the most important topics of your class 12 portion, that is Plasmodium vivax, and about malaria. This Plasmodium vivax is basically a protozoa. Okay, this is a protozoa and endoparasite. Okay, and this particular Plasmodium vivax causes what? It causes malaria. Okay, so we will today discuss about the life cycle of Plasmodium vivax and also how it causes malaria. Okay, these discussions we will do. The first thing that I have written in board is completely some informations which are absolutely essential from entrance point of view. Okay, here it is all about that when, who and how they discovered about different stages, different activities of Plasmodium vivax. That is what it is written all over here. G.B. Grassi 1900 fully described the life cycle of Plasmodium in the stomach of Anopheles female mosquitoes. So this particular Plasmodium vivax is a digenetic endoparasite. It has two hosts to complete its life cycle. The primary host is mosquito, the secondary host is human. So here we are the secondary host and the primary host is the mosquito. How did we say that? Because inside the body of primary host sexual reproduction occurs. So sexual reproduction occurs inside the body of mosquito, whereas inside the body of human asexual reproduction occurs. Hence we are secondary host, mosquito is primary host. Okay, so inside the body of primary host, the life cycle was completely described by G.B. Grassi. What the life cycle is, we will know it later. Okay, so here you should understand, here the mosquito is Anopheles mosquito. Okay, the species is Anopheles. Okay, not Culex, not the other ones that we have studied in previous lectures. Here you will have to remember this name in a very precise manner. Short and Garnham, Jeffrey, Bray reported pre-erythrocytic and exo-erythrocytic stages of Plasmodium vivax. ये ह्यूमन के बॉडी का बात हो रहा है. इनसाइड द ह्यूमन बॉडी जब लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ ग्रोथ आरबीसी के बाहर होता है. हमारे बॉडी के आरबीसी के बाहर कुछ ग्रोथ होता है एंड कुछ ग्रोथ आरबीसी के अंदर होता है. ठीक है ना. तो वो जो आरबीसी के बाहर जो कुछ ग्रोथ होता है, उसी ग्रोथ का दो स्टेज है. एक को हम लोग प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज बुलाते हैं, एक को हम लोग एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज बुलाते हैं. और ये दोनों स्टेज आरबीसी के बाहर हमारे बॉडी के अंदर होता है. उसके बाद जब आरबीसी के अंदर चला जाता है तो उसको हम लोग इरिथ्रोसाइटिक फेज बुलाएंगे, है ना. तो ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक, प्री इरिथ्रोसाइटिक, ये सब दो स्टेज है जो आरबीसी के बाहर होता है हमारे बॉडी के अंदर. और इन सब के बारे में रिपोर्ट किया है इन लोगों ने. Plasmodium was discovered by Charles Levren in 1880. Very important point. Lenzizi first suspected a relationship between mosquito and malaria. ठीक है, mosquito जो एक प्राइमरी होस्ट है इस ऑर्गेनिज्म का, ये निकाला था इस इंसान ने जिसका नाम है लेंसिसी. Sir Ronald Ross confirmed the oocytes of Plasmodium vivax in the stomach of mosquito this year, for which he got Nobel Prize in this. ठीक है, तो स्टोमक के अंदर जो oocytes फॉर्म होगा, एग्स, फर्टिलाइज्ड एग्स का प्रेजेंस रहेगा, ये सब के बारे में इस इंसान ने कंफर्म किया है. ठीक है, तो इस इंसान के बारे में हम लोग को लाइफ साइकिल में भी एक जगह में पढ़ने को मिलेगा. रॉस साइकिल बोल के क्या है मैं बाद में समझा रहा हूँ. Term malaria was coined by Mikuloch in 1827, considered it as the most important parasitic disease of man. ठीक है, तो ये सब कंप्लीटली इंफॉर्मेशनल पॉइंट है, इसको लिखना है. अब आगे चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द सिम्टम्स एंड फेजेस ऑफ मलेरिया. एंड ये बस एक जनरल इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेशन के जैसा है, क्योंकि अभी जब हम लोग लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सब कवर अप हो ही जाएगा. ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये सब बोर्ड्स में पूछ लेता है, तो इसलिए अलग से मैंने थोड़ा सा कराया लिखा है यहाँ पे. सिम्टम्स एंड फेजेस ऑफ मलेरिया, इसमें हम लोग दो तरीके का सिम्टम्स देखेंगे. एक को हम लोग बुलाते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम, दूसरे को हम लोग बुलाते हैं पैरोक्सिज्म. ठीक है, तो प्रोड्रोमल सिम्टम क्या है? देखो, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है. हमारे बॉडी में एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आने से वो डिजीज कॉज करने तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बुलाते हैं. और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इसी इंक्यूबेशन पीरियड में जनरली इंक्यूबेशन पीरियड आर सिम्टोमलेस. जब एक ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आएगा, आके जब तक बीमारी का सिम्टम शो करेगा, तो जब मेन सिम्टम्स वो शो करना शुरू करेगा
ठीक है, उस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलाते हैं। और ड्यूरिंग दिस इंक्यूबेशन पीरियड जनरली बॉडी में कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। लेकिन in case of Plasmodium vivax we will get some symptoms even during the incubation period, but these symptoms are going to be a very mild symptom, ठीक है, इतना ज्यादा हेवी सिम्टम नहीं होगा। तो जनरली लोग इसको नॉर्मल तरीके से ही ले लेते हैं, सोचते नहीं है कि मलेरिया हुआ है। जब मेन सिम्टम निकल के आता है, जब ये होता है पैरोक्सिज्म होता है, मेन सिम्टम निकल के आता है, तब जाके लोग कॉन्शियस होते हैं, सोचते हैं कि शायद मलेरिया हुआ है, जाके दिखाते हैं, टेस्ट करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, अकॉर्डिंगली दे एक्ट, ठीक है ना। अब देखो प्रोड्रोमल सिम्टम में क्या लिखा है, इन अ टिपिकल मलेरियल इन्फेक्शन माइल्ड सिम्टम्स अपीयर अर्ली इवन ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम में जनरली सिम्टम्स नहीं आता है, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में इवन ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड इनसाइड आवर बॉडी तब भी कुछ सिम्टम्स आता है। क्या आता है सिम्टम्स में? आएगा नोजिया, उल्टी का फीलिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भूख नहीं लगेगा, कंस्टिपेशन, ड्राई माउथ, इंसोम्निया, रात को स्लीप नहीं होगा, माउथ विल ऑफन फील ड्राई, मसल एंड जॉइंट पेन ऑल्सो ऑकर्स अकम्पनीड बाय माइल्ड सेंसेशन ऑफ चिल। माइल्ड सेंसेशन ऑफ चिल माने थोड़ा थोड़ा बुखार जैसा फील आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोड्रोमल सिम्टम बुलाते हैं। और अगर पूछा जाए कि प्रोड्रोमल सिम्टम्स कब दिखाई देता है, ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग लिख के भी रख सकते हो या लिखने का जरूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ है। पैरोक्सिज्म ये है मेन, ये है जब इंक्यूबेशन पीरियड जब खत्म होता है जब इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होता है तब एक सिम्टम क्लिनिकल निकल के आता है, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज बुखार आएगा। हाँ तो चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। तो सिम्टम निकल के आएगा, मेन सिम्टम जिसमें पूरा तेज बुखार आएगा, बहुत हाई फीवर आएगा, रेगुलर इंटरवल्स में फीवर आएगा, कुछ दिन बाद फीवर आएगा। क्यों आएगा रेगुलर इंटरवल में फीवर, मलेरिया में क्यों आता है, वो भी हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है, इट इज द एक्चुअल क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया। और क्वेश्चन में तुम लोग को घुमा सकता है कि पैरोक्सिज्म कब शो होता है, एट द एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो मेन सिम्टम्स निकल के आएगा वो है पैरोक्सिज्म, ठीक है। व्हिच इनिशियली बिगिंस आफ्टर एन अर्लीस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि इनका जो लाइफ साइकिल, उस लाइफ साइकिल में कुछ हिस्सा आरबीसी के बाहर होता है, कुछ आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पैरोक्सिज्म कब आएगा, कब निकल के आएगा, कब एक इंसान को समझ में आएगा, कब वो क्लिनिकल अटैक होगा। ये तब होगा जब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होना शुरू हो जाएगा। दैट मींस जो पैरासाइट है वो पैरासाइट आरबीसी के अंदर घुस के अपना लाइफ साइकिल को जब आगे बढ़ाएगा, उस टाइम पे ये पैरोक्सिज्म होता है, क्लिनिकल अटैक होता है। बट इज देन रिपीटेड आफ्टर एवरी साइकिल, ठीक है। हर इरिथ्रोसाइटिक साइकिल खत्म होने के बाद पैरोक्सिज्म होगा। क्यों होगा वो लाइफ साइकिल में समझ में आएगा। मतलब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बहुत बार होता है हमारे बॉडी में, और हर बार जब एक इरिथ्रोसाइटिक साइकिल खत्म होगा तब बहुत तेज बुखार बॉडी में आएगा। वो क्यों आएगा वो मैं लाइफ साइकिल में समझाऊंगा। इट ऑल्सो रिजल्ट्स ड्यू टू सफिशिएंट एक्युमुलेशन ऑफ हेमोजोइन, एक टॉक्सिन है ये, एंड अदर टॉक्सिन्स इन द ब्लड, ठीक है। ये हेमोजोइन का क्या रिलेशन है, आई विल एक्सप्लेन यू इन द लाइफ साइकिल। ड्यूरेशन ऑफ पैरोक्सिज्म वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट इंक्लूड्स 3 स्टेज। 3 स्टेज में एक स्टेज का नाम है रिगोर, एक का नाम है फेब्राइल और एक का नाम है डिफरवेसेंट। तो अभी देख लेते हैं कि ये 3 स्टेज क्या है और 3 स्टेज में क्या होता है, उसके बाद हम लोग लाइफ साइकिल में चले जाएंगे, ठीक है। ये है वो 3 स्टेजेस जिसके बारे में मैंने बात किया था। देखो पहला स्टेज का नाम है रिगोर स्टेज। पेशेंट एक्सपीरियंसेस अ टेरिबल चिल, बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा, एंड शिवरिंग, बहुत शिवर करेगा ठंडा के वजह से, रैपिड पल्स एंड ब्रीदिंग, सीवियर हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब है रिगोर स्टेज में। ये सब सिम्टम्स हम लोग को दिखाई देता है। फेब्राइल स्टेज, शिवरिंग सबसाइड्स इन अबाउट एन आवर, वो जो शुरू हुआ था वो इन एन आवर शिवरिंग कम हो जाएगा, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक राइज कर जाएगा, जो बहुत ज्यादा है, ठीक है। डिफरवेसेंट स्टेज, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ प्रोफ्यूज स्वेटिंग स्टार्ट्स, ये टेम्परेचर में कुछ घंटा तक बॉडी का टेम्परेचर इसी में रहेगा, ठीक है। उसके कुछ टाइम बाद स्वेटिंग स्टार्ट होगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी स्टेडीली ड्रॉप्स, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम एग्जॉशन एंड वीकनेस द पेशेंट फील्स हेल्दी अगेन, ठीक है। तो फिर वो बुखार
नहीं आएगा। ठीक है, ये जनरली जो ये सब सिम्टम्स मैंने लिखा है कब होता है, जब आरबीसी के अंदर इरिथ्रोसाइटिक फेज चल रहा है और आरबीसी को बार्स्ट करके जब वो पैरासाइट आरबीसी से बाहर आता है तब ये सब होता है। फिर ये सब 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, फिर वो ऑर्गेनिज्म फिर आरबीसी के अंदर घुसता है, फिर 7 दिन के बाद फिर से जब आरबीसी से बाहर आएगा तो फिर ये सब चीज होगा। इसलिए बोलते हैं कि नहीं, मलेरियल बुखार में वो बुखार क्या होता है, बार बार आता रहता है एट सर्टेन गैप, और वही जनरली लोग तभी समझता है कि मलेरिया हुआ है। आज अगर बुखार आया फिर 7 दिन बाद फिर से आएगा, फिर या फिर 5-6 दिन बाद फिर से आएगा, तो उसी से लोग समझता है कि बुखार हुआ है। ठीक है ना, तो इसका अगर मैं कनेक्शन बनाने जाऊं तो यही है कि एक इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोल के है, दैट मींस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का एक लार्वल फॉर्म क्या करेगा, वो आरबीसी के अंदर घुसेगा और आरबीसी के अंदर घुस के आरबीसी के अंदर ग्रो करेगा, ग्रो करके आरबीसी को फाड़ के बाहर आएगा। तो आरबीसी को जब फाड़ के बाहर आएगा तब ये सब सिम्टम्स बॉडी में होगा वन आफ्टर अनदर। उसके बाद बॉडी ठीक हो जाएगा, फिर वो ऑर्गेनिज्म फिर आरबीसी के अंदर घुसेगा, घुस के फिर ग्रो करेगा, फिर जब बाहर आएगा फिर ये सब होगा। तो ऐसे करके कुछ बहुत बार इस तरीके का वो साइकिल करेगा और हर बार वो साइकिल खत्म करके आरबीसी से बाहर आता है तो ये सब सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देता है। ठीक है, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम मलेरिया में बी ड्यू टू इफेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप बाय द पेशेंट, बट ये कंडीशन बहुत रेयर है। मलेरिया होने से, बुखार आने से जनरली लोग मेडिसिन खा ही लेता है, मेडिसिन खा लेता है तो बॉडी का इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगा, वो मेडिसिन जाके ही सब कुछ ठीक कर देता है। ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए यू विल हैव टू बियर विद दैट पर्टिकुलर डिजीज। फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स, जब चिकन पॉक्स होता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेडिसिन नहीं लेते। चिकन पॉक्स होने से हम लोग हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को फाइट करने के लिए देते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं and we allow our body to fight with it. When our body will itself fight with it, at that time it will develop what? Some immunity. मलेरिया होने से ये टेम्परेचर बहुत ही रिस्की है, क्योंकि ये टेम्परेचर होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, बहुत सारा एंजाइम हार्मोन काम करना छोड़ देगा, तो बहुत सारा लोग मलेरियल बुखार से ही मर जाता है। तो लोग क्या कर लेते हैं, दे डोंट टेक चांस, दे डोंट अलाउ देयर बॉडी टू फाइट विद इट, क्योंकि कभी ना कभी टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा, बोले एंजाइम हार्मोन काम करना छोड़ दिया, बॉडी खत्म। तो इसलिए क्या होगा, जैसे ही डिटेक्शन होगा या जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लोग तुरंत मेडिसिन खा लेता है, उसके वजह से इम्यूनिटी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए बहुत लोगों को मलेरिया बार बार होता रहता है। ठीक है, तो ये लिख लो। अभी हम लोग लाइफ साइकिल में घुसेंगे, एंड लाइफ साइकिल में मैं उस दिन जैसे तुम लोगों को एंटामोeba हिस्टोलाइटिका का पढ़ाया वैसा ही पढ़ाऊंगा, शॉर्टकट में नोट्स में अटैचमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनना, जो एक्सप्लेनेशन लाइफ साइकिल का भी आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंड बिकॉज ये एक साइकिल है तो कहीं से स्टार्ट करेंगे, वापस आगे वहां पे हम लोग मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में लेट्स स्टार्ट विद समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज स्पोरोजोइड। ठीक है, ये जो स्पोरोजोइड है ये एक स्पिंडल शेप, स्पिंडल समझ में आया ना, आजकल घर में पास्ता खा रहे हो उसमें ऐसा ट्विस्टेड पास्ता एक आता है कि नहीं, वो है स्पिंडल, उस तरीके का होता है स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, ये एक स्पिंडल शेप्ड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का एक लाइफ साइकिल का एक स्टेज है। ठीक है, तो ये जो स्पोरोजोइड है, बेसिकली स्पोरोजोइड को तुम, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का यू कैन कंसीडर इट टू बी अ लार्वल फॉर्म लाइक दैट। ठीक है ना, एक लार्वल फॉर्म बोल सकते हो, लेकिन जनरली ये लार्वल फॉर्म है नहीं, इसको हम लोग स्पोरोजोइड ही बुलाते हैं, बट कंसीडर इट लाइक दैट। हम लोगों ने बहुत सारा लाइफ साइकिल किया है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि एक लाइफ साइकिल में कोई पॉलीएम्ब्रायोनी अगर शो करता है, ठीक है, तो काफी ज्यादा अलग अलग स्टेज आता है, तो कंसीडर इट टू बी वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये स्पोरोजोइड जो स्पिंडल शेप्ड है, इसको जब भी हम लोगों को एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काटेगा, ठीक है, जब भी हम लोग को एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब हम लोग को काटेगा, ठीक है, तो वो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में डाल देगा एज मेनी एज 1000 स्पोरोजोइड। ठीक है, सिंगल बाइट में एक इन्फेक्टेड फीमेल, ठीक है, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इन्फेक्टेड कैसे हुआ वो भी साइकिल के लास्ट में हम लोग जाके घूम के पहुंच जाएंगे। फिलहाल यहां से स्टार्ट करते हैं कि कोई एक मॉस्किटो है, ठीक है, और मॉस्किटो का बात यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज हमको पता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है, मैंने पहले भी बोला है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है डाइजेनेटिक एंडो पैरासाइट। इसका मतलब इसका दो होस्ट है,
ठीक है, जिसमें इसका प्राइमरी होस्ट है एनोफिलिस मॉस्क्यूटो एंड इसका सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट है ह्यूमन। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट के बॉडी से, एक इन्फेक्टेड प्राइमरी होस्ट के बॉडी से जब भी ये मॉस्क्यूटो हम लोग को बाइट करेगा, ह्यूमन को बाइट करेगा, तो ह्यूमन के बॉडी में क्या करेगा, 1000 स्पोरोजोइड डाल देगा। ठीक है, ये जो 1000 स्पोरोजोइड डाला गया है हमारे बॉडी में, ये 1000 स्पोरोजोइड के पास 30 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, अगर 30 मिनट्स के टाइम के अंदर अगर ये 1000 स्पोरोजोइड हमारे ब्लड में ही रह जाता है, तो हमारा मोनोसाइट जो मैक्रोफेज है वो आके क्या करेगा, इन सबको मार देगा। ठीक है, तो इसके पास 30 मिनट्स का टाइम है अपने आप को हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का मैक्रोफेज से बचाने के लिए। इसके पास, इन स्पोरोजोइड के पास 30 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, तो विद इन 30 मिनट्स अगर ये कहीं जाके छुपता नहीं है, ठीक है, अगर ब्लड में ही रह जाता है, तो हमारा मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल इसको मार देगा। तो विद इन 30 मिनट्स ये स्पोरोजोइड क्या करता है, ये हमारे ब्लड के साथ घूमता रहता है और घूम घूम के जाके ये घुस जाता है किसके अंदर, इट एंटर्स इनसाइड हेपाटोसाइट्स। नाउ हेपाटोसाइट्स क्या है, लिवर सेल्स। ठीक है, तो जैसे ही जाके लिवर सेल के अंदर घुस जाएगा, ठीक है, लिवर सेल के अंदर घुसने के बाद हमारा बॉडी का इम्यूनिटी तो इसको अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब अगर इसको अटैक करना है तो लिवर सेल को डैमेज करना पड़ेगा। तो हमारा खुद का बॉडी, खुद का इम्यून सिस्टम खुद के सेल के ऊपर तो अटैक नहीं करता है इन जनरली। ठीक है ना, तो मैक्रोफेज आके क्या करेगा, इसको ब्लड में ढूंढता रहेगा, लेकिन ये जाके कहां छुप गया, हेपाटोसाइट के अंदर छुप गया। नाउ मैक्रोफेज विल नॉट अटैक हेपाटोसाइट, तो ये बच गया। ठीक है, लाइक दैट। तो इट एंटर्स हेपाटोसाइट और हेपाटोसाइट के अंदर घुस के 1 स्पोरोजोइड, एक स्पोरोजोइड क्या करता है, एक स्पोरोजोइड करता है एनसिस्टेशन, EN जब लगाएंगे इसका मतलब अपने ऊपर फॉर्म करता है एक सिस्ट कवरिंग। ठीक है, एंड मैंने ये तुम लोग को ऑलरेडी समझाया है कि एक लोअर ऑर्गेनिज्म जब भी सिस्ट का कवरिंग अपने ऊपर फॉर्म करता है, वो जनरली क्यों फॉर्म करता है, इन ऑर्डर टू डू बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, मोस्टली मल्टीपल फिजन और जेम्यूल फॉर्मेशन। मल्टीपल फिजन, जेम्यूल फॉर्मेशन, ये सब करने के लिए ये लोग अपने बॉडी के ऊपर एक सिस्ट कवरिंग चढ़ाता है। ठीक है, तो हेपाटोसाइट के अंदर एक स्पोरोजोइड अपने ऊपर क्या करेगा, एक सिस्ट कवरिंग का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही सिस्ट कवरिंग का फॉर्मेशन करेगा, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, इसको हम लोग स्पोरोजोइड नहीं बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे सीजोन। ठीक है, एंड ये जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का, ये लाइफ साइकिल नाम के ऊपर ही पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। हर एक स्टेज में नाम चेंज हो जाएगा एंड स्टेज स्टेप के अकॉर्डिंगली तुम लोग को नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग साइकिल में कहां तक पहुंचे, समझ में आ गया। एक फीमेल प्राइमरी होस्ट जो इन्फेक्टेड है, उसने अगर किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट किया, तो वो मॉस्क्यूटो हेल्दी ह्यूमन के बॉडी में 1000 स्पोरोजोइड्स डाल देता है। ठीक है, वो 1000 स्पोरोजोइड के पास 30 मिनट्स का टाइम है टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम आवर मोनोसाइट न्यूट्रोफिल। सो विद इन 30 मिनट्स दोस 1000 स्पोरोसाइट विल हैव टू एंटर इनसाइड हेपाटोसाइट। ठीक है, हेपाटोसाइट के अंदर घुसने से हमारा मोनोसाइट उसको अटैक नहीं करेगा, वो बच जाएगा। हेपाटोसाइट के अंदर घुस के क्या करता है, एक स्पोरोजोइड अपने ऊपर एक सिस्ट कवरिंग फॉर्म करेगा और सिस्ट कवरिंग फॉर्म करके बन जाएगा क्या, एक सीजोन। ये एक सीजोन के अंदर क्या होने वाला है, ये एक सीजोन के अंदर होने वाला है मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल फिजन होके इसके अंदर फॉर्म होगा 1000 एक स्पोरोजोइड। एंसिस्टेशन क्या अपने अंदर मल्टीपल फिजन क्या, उसके वजह से 1000 इसने कुछ दूसरा फॉर्म डेवलप किया। ये जो 1000 दूसरा फॉर्म डेवलप किया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज 1000 मेरोजोइड्स। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन करके एक स्पोरोजोइड या एक सीजन के अंदर जो एक स्पोरोजोइड था, वो एक स्पोरोजोइड ने मल्टीपल फ्यूजन किया करके 1000 मेरोजोइड्स का फॉर्मेशन किया। ये 1000 मेरोजोइड्स क्या करेगा, ये 1000 मेरोजोइड्स करेगा एक्सिस्टेशन, मतलब सिस्ट कवरिंग को तोड़ देगा। ठीक है, प्लस एक्सिस्टेशन करेगा, सिस्ट कवरिंग तोड़ेगा, प्लस क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन लाइसिस। किसका सेल मेम्ब्रेन लाइसिस, हेपाटोसाइट का सेल मेम्ब्रेन लाइसिस। हेपाटोसाइट का सेल मेम्ब्रेन को फोड़ देगा, फोड़ के ये जो 1000 मेरोजोइड्स है, ये 1000 मेरोजोइड comes out into the liver sinusoids। ठीक है, तो 1000 मेरोजोइड्स एक स्पोरोजोइड से 1000 मेरोजोइड बन चुका है मल्टीपल फिजन के वजह से, और वो 1000 मेरोजोइड अपना सिस्ट कवरिंग भी हटाएगा।
जो सेल के अंदर ये बना, दैट इज हेपाटोसाइट, उस सेल मेम्ब्रेन को भी ये फोड़ देगा, फोड़ के ये बाहर आ जाएगा और कहा आ जाएगा लीवर के सिनुसॉइड्स में। अब सिनुसॉइड्स क्या है? सिनुसॉइड्स आर दोज प्लेसेस जहां पे मेजर ब्लड वेसल्स मीट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमको पता है जो लीवर है उस लीवर में हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू एलिमेंट्री कैनल का ब्लड आता है, ठीक है। हेपाटिक आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्टा आता है, एंड यहां से निकलता है क्या? यहां से निकलता है हेपाटिक वेन, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर से लेके निकल जाता है। तो हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ एलिमेंट्री कैनल। हेपाटिक आर्टरी के थ्रू क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो लिवर इज द ओनली ऑर्गन वेयर डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली मिक्सेस विद वन अनदर। कहां पे होता है ये मिक्सिंग? यहां पे होता है ये मिक्सिंग। ये जो आर्टरी आ रहा है, ये आर्टरी आके ये हेपाटिक पोर्टल वेन के साथ एक पोर्शन है जहां पे दोनों मिल जाएगा, और वो जो पोर्शन है जहां पे ये दोनों आके मिलता है उसी पोर्शन को हम लोग क्या बुलाते हैं? सिनुसॉइड बुलाते हैं। एंड हेंस हमको पता है दैट इन आवर एंटायर बॉडी जितना भी ऑर्गन है उन सब ऑर्गन में लिवर इज द ओनली ऑर्गन वेयर the oxygenated and deoxygenated blood directly mixes with one another, ठीक है। तो ये है सिनुसॉइड, वो जगह है जहां पे हेपाटिक आर्टरी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ आके मिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर मिक्स ब्लड लिवर में सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन देता है, CO2 उठाता है, कंप्लीटली डीऑक्सीजनेटेड बन के हेपाटिक वेन के थ्रू निकल के इंफीरियर वेना कावा के थ्रू घुस जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी भी थोड़ा सा इधर है। तो लिवर सिनुसॉइड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये है लिवर सिनुसॉइड, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। लिवर सिनुसॉइड्स में चला जाएगा, जाके ये क्या करेगा? लिवर सिनुसॉइड में जाके ये क्या करेगा? इट फीड्स ऑन दी न्यूट्रिएंट्स दैट कम्स इनटू द लिवर, ठीक है, दैट कम्स इनटू द लिवर वाया हेपाटिक पोर्टल वेन। तो हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू जो ब्लड आता है वो ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए आता है, ठीक है ना। हमारे एलिमेंट्री कैनल, हमारा इंटेस्टाइन, स्टोमक, ये सब का जो ब्लड है, ठीक है ना, वो हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ आता है? मोस्टली इंटेस्टाइन का ब्लड हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में आता है, ठीक है ना। तो हेपाटिक पोर्टल वेन का जो ब्लड है वो इंटेस्टाइन से होते हुए आ रहा है, तो इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ उसको लेते हुए आ रहा है। तो हेपाटिक पोर्टल वेन जो है, हेपाटिक पोर्टल वेन में वो न्यूट्रिएंट्स होगा, वो न्यूट्रिएंट्स खाने के लिए ये पर्टिकुलर मेरोजॉइड कहा गया था, लिवर के सिनुसॉइड में गया था, क्योंकि इसको पता है कि लिवर के सिनुसॉइड में हेपाटिक आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, क्योंकि हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स लेते हुए आ रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स मैं खा लूंगा, और खा के ये जो मेरोजॉइड्स है, ये मेरोजॉइड्स क्या होता है? becomes what? immune to medicines, ठीक है। इसके पहले तक ये न्यूट्रिएंट्स जो इसने सिनुसॉइड में आके खाया, वो न्यूट्रिशन खाने के पहले तक अगर तुमने कोई भी नॉर्मल मेडिसिन अगर खा लिया, ठीक है, वो नॉर्मल मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में ये ऑर्गेनिज्म मर जाता, ठीक है। लेकिन अभी इसने क्या किया? ये पहला मल्टीपल फ्यूजन खत्म करके ये बाहर निकल के आया, लिवर सिनुसॉइड में निकल के आया और आके अपने आप को न्यूट्रिशन खाया, ठीक है, हमारा ब्लड से न्यूट्रिशन खाया, खा के अपने आप को क्या किया? इम्यून टू मेडिसिन बना लिया। इसके बाद अगर तुम बुखार का टेबलेट खाओगे, सर दर्द का टेबलेट खाओगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसने अपने आप को मेडिसिन के प्रति इम्यून बना लिया है। लेकिन इसके पहले, ये जो लिवर सिनुसॉइड में आने से पहले अगर तुम सर दर्द का दवाई खाते, बुखार का खाते, तो वो मेडिसिन के वजह से भी ये मर सकता था। इट वाज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स केमिकल। लेकिन इसने अभी अपने आप को केमिकल्स के प्रति अपना जो सेंसिटिविटी है उसको एकदम लो कर लिया है, इसको अभी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मेरोजॉइड अपने आप को इम्यून कर लेता है मेडिसिन से, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इसको हम लोग बुलाते हैं क्रिप्टोजॉइड, नाम चेंज। देखो, जैसे ये मेरोजॉइड ने अपने आप को मेडिसिन के प्रति इम्यून किया, इसका नाम चेंज हो गया, ये क्या बन गया? ये बन गया क्रिप्टोजॉइड, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया है, ये एंटर्स हेपाटोसाइट से लेके इट कम्स टू द लिवर सिनुसॉइड, ये जो डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन को हम लोग बुलाते हैं क्या? इसको हम लोग बुलाते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज, ठीक है। ये है प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज, जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज, ये है वो। क्योंकि अभी भी आरबीसी तो आया ही नहीं, आरबीसी के अंदर जाके घुसा ही नहीं है, ये अभी भी लिवर के सेल के अंदर ये पहला मल्टीपल फ्यूजन हुआ, इसको हम लोग प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज बुलाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या देखेंगे
ये जो क्रिप्टोजॉइट है, ये क्रिप्टोजॉइट क्या करेगा, ये क्रिप्टोजॉइट री एंटर्स इनसाइड दी हेपाटोसाइट। ठीक है, ये क्रिप्टोजॉइट क्या करेगा, फिर से हेपाटोसाइट के अंदर जाके फिर से घुसेगा और फिर से घुस के क्या करेगा, फिर से घुस के एंसिस्टेशन करेगा, अपने ऊपर सिस्ट कवरिंग चढ़ाएगा, फिर से बनेगा क्या, फिर से बनेगा सीजोन, और सीजोन बन के फिर से करेगा क्या, फिर से करेगा मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल फिजन करके एक एक क्रिप्टोजॉइट वापस से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1000 क्रिप्टोमेरोजॉइट्स। ठीक है, 1000 क्रिप्टोमेरोजॉइट्स में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, मल्टीपल फिजन करके। ठीक है, ये जो एक और हम लोगों ने अभी क्या देखा, मेडिसिन से इम्यून होने तक एक और मल्टीपल फ्यूजन हुआ और अपना नंबर्स बढ़ाया। इस साइकिल को हम लोग क्या बुलाते हैं, इस साइकिल को हम लोग बुलाते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज। ठीक है, ये जो क्रिप्टोजॉइट वापस से जाके हेपाटोसाइट के अंदर घुसा, एंसिस्टेशन किया, सिस्ट कवरिंग फॉर्म किया अपने ऊपर, तो वापस सीजोन बना, सीजोन के अंदर हुआ मल्टीपल फ्यूजन, तो एक एक क्रिप्टोजॉइट ने अभी क्या किया, 1000 कुछ प्रोड्यूस किया, उनका नाम क्या है, फिर से चेंज हो गया, क्रिप्टोमेरोजॉइट हो गया। अब ये क्रिप्टोमेरोजॉइट क्या करेगा, ये क्रिप्टोमेरोजॉइट करेगा क्या, एक्सिस्टेशन प्लस सेल मेम्ब्रेन लाइसिस। ठीक है, ये जो हेपाटोसाइट है उसका सेल मेम्ब्रेन फोड़ देगा, अपने ऊपर का सिस्ट कवरिंग फोड़ देगा, फोड़ के ये क्या कहा आ जाएगा, कम्स आउट इनटू द ब्लड। ठीक है, और ब्लड में वापस से निकल के आएगा। तो ये जो एक फेज है कि सिनुसॉइड में जाके क्रिप्टोजॉइट बन के वापस री एंटर करके फिर से जो एक मल्टीपल फ्यूजन करना, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज बुलाते हैं। ठीक है, और जैसे ये ऑर्गेनिज्म ब्लड में निकल के आएगा तब इसका नाम फिर से चेंज हो जाएगा। इसको अब हम लोग बुलाएंगे क्या, जैसे ही ब्लड में निकल के आएगा इसको हम लोग बुलाएंगे मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट। तो देखो इतना में ही दो फेज हम लोगों ने डिस्कस किया, प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज एंड एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज। इसी में कितना सारा नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो हर एक स्टेप में हर एक लेवल पे नाम चेंज हो रहा है और उसको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी पैटर्न से भी दे देता है, कौन सा किसके पहले आया है अरेंज करो, कौन सा किसके मतलब बाद आया है अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे करके दे देगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली स्टेप वाइज याद रखना बहुत जरूरी है। आई होप समझ में आ रहा है, कहानी के जैसा है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही क्रिप्टोमेरोजॉइट एक्सिस्टेशन सेल मेम्ब्रेन लाइसिस करके निकल के आएगा, निकल के आने के साथ साथ ठीक है ब्लड में जैसे निकल के आएगा नाम चेंज, मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट नाम हो जाएगा। अब ये मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट का क्या होगा ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़िया, करंट भी चला गया। ठीक है, तो अब ये जो मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट है, जहां पे हम लोगों ने खत्म किया था, ब्लड में आने के बाद नाम चेंज हो गया मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट। ये मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट अब क्या होगा, ये एंटर्स इनसाइड दी आरबीसी, ये आरबीसी के अंदर जाके घुसेगा। ठीक है, और आरबीसी के अंदर घुस के ये क्या करेगा, इट स्टार्ट्स टू फीड ऑन द इनर सेल मास ऑफ आरबीसी। आरबीसी को अंदर से ये क्या करेगा, खाने लगेगा। ये अंदर से खाने के वजह से इस मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट का होगा ग्रोथ, और जैसे इस मेटाक्रिप्टो ऑब्वियसली खाना खा रहा है तो ग्रोथ होगा। आरबीसी के अंदर घुस के आरबीसी के अंदर का सामान खा रहा है, ग्रोथ कर रहा है। जैसे इसका ग्रोथ होगा इसका नाम फिर से चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग बुलाएंगे क्या, इसको हम लोग बुलाएंगे ट्रोफोजॉइट। ये ट्रोफोजॉइट जो है, ये ट्रोफोजॉइट जब बन जाएगा उसके बाद आरबीसी के अंदर बना है ट्रोफोजॉइट। अब ये ट्रोफोजॉइट क्या करेगा, दो एक्टिविटी करेगा। पहला एक्टिविटी क्या करेगा, ये ट्रोफोजॉइट फॉर्म्स सम टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स इनसाइड आरबीसी। ये आरबीसी के अंदर कुछ टॉक्सिक ग्रेन्यूल फॉर्म करता है। ठीक है, और ये जो टॉक्सिक ग्रेन्यूल ये फॉर्म करता है, उस टॉक्सिक ग्रेन्यूल का नाम क्या है, उसका नाम है हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स। दूसरा एक्टिविटी जो ये ट्रोफोजॉइट करेगा, पहला एक्टिविटी टॉक्सिक ग्रेन्यूल फॉर्म किया, आरबीसी के अंदर डाल दिया। दूसरा एक्टिविटी ये ट्रोफोजॉइट क्या करेगा, ये ट्रोफोजॉइट अपने ऊपर चढ़ाएगा सिस्ट कवरिंग, एंसिस्टेशन करेगा, करके
जैसे इंसिस्टेशन करेगा फिर से इसका नाम क्या हो जाएगा, इंसिस्टेशन करने से ही नाम सीजोन। उसके बाद क्या करेगा, एक्सिस्टेशन, और एक्सिस्टेशन इस बार करने से ज्यादा बड़ा मल्टीपल फ्यूजन इस बार नहीं होगा, ठीक है। सीजोन और नहीं, सीजोन के अंदर करेगा मल्टीपल फ्यूजन, और मल्टीपल फ्यूजन करके फॉर्म करेगा 12 to 24 मेरोजोइट्स, 12 to 24 मेरोजोइट्स फॉर्म करेगा। नाम सिमिलर है, मेरोजोइट पहले भी मिला था, अभी भी मिल रहा है, ठीक है। ये जो 12 to 24 मेरोजोइट्स है, ये 12 to 24 मेरोजोइट्स क्या करेगा, दो चीज सिमिलर, एक्सिस्टेशन करेगा प्लस आरबीसी को फोड़ देगा, सेल मेम्ब्रेन लाइसिस करेगा और करके बाहर आएगा, कम्स आउट। तो अब पॉइंट ये हुआ कि आरबीसी के अंदर इस ट्रोफोजोइट ने क्या किया था, कुछ टॉक्सिक ग्रेन्यूल रखा था कि नहीं। अब जब ये 12 to 24 मेरोजोइट सेल मेम्ब्रेन लाइसिस आरबीसी को रप्चर करेगा और करके जब बाहर आएगा, तो इसके साथ साथ, इन मेरोजोइट्स के साथ साथ और बाहर निकल के आएगा कौन, हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स। और जैसे ही हमारे बॉडी को फील होगा कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एक टॉक्सिक ग्रेन्यूल आके घुसा है, तो हमारा बॉडी, हमारा हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा, हमारा हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा देगा। इसके वजह से जो रिगोर स्टेज है, रिगोर स्टेज में हम लोगों ने क्या लिखा, चिल एंड शिवरिंग, ठीक है, बुखार आना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये हेमोजोइन ग्रेन्यूल क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। ये रिगोर स्टेज कब चालू हुआ, ये रिगोर स्टेज तब चालू हुआ जब क्या हुआ, ये आरबीसी को फोड़ा गया, और आरबीसी को फोड़ के जब ये ऑर्गेनिज्म बाहर आया और अपने साथ अपना टॉक्सिक ग्रेन्यूल भी लेके बाहर आया, वो टॉक्सिक ग्रेन्यूल का प्रेजेंस इन आवर ब्लड विल फोर्स आवर हाइपोथैलेमस टू इंक्रीज द बॉडी